been participating in this. We, Dr. Mumtaz Ahmad Residential School, Hoskote, Falconer's Bomb. Thank you, Azhar bhai. You should all know and understand that the whole country is run by people like us, and you people are going to take up the same responsibilities in future. Right now, the game of football, what you are going to play, participate in the tournament. See, once upon a time there was a legend of football, Mr. Pele. Then Mr. Maradona. Then Ronaldo. Now Messi. And as you all know, all these legends are very much same as you are today when they were in your age. They were also standing like you people, and they were also participating in tournaments like this. Hence, if you make up your mind and if you have the determination to achieve something in the life, in the field of football, every one of you can take that kind of stage in the world. You also can become the world champion. Every one of you. See, our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has given some word of advice to boys like you. That is, always dream big. Don't dream small. Dream big and strive to achieve that dream. Hence, today as the chief guest of this tournament, I advise you to dream big in your life so that you take up the cudgels of the country and become champions also in whatever field you choose or work for. That will bring definitely bring a big name both to your parents, your institution, and the founders of the institution. This Al-Amin educational institution was founded by Janab Dr. Mumtaz Ahmad Khan Sahab, and today this tournament is named after him. Hence, we all, including me, extend our highest respect to the man of that caliber who has started many institutions where many of the citizens of India have excelled and taken up very big positions in the whole India and outside our country also. Today, we all should strive hard to see that every one of us also follow his footsteps. Today, when I see Mr. Umar Ismail Sahab taking up the responsibilities of his Janab Mumtaz Ahmad Khan Sahab, I really feel as a senior citizen and one of the social activists of the community, I see this as a very great hope for the whole community and the whole society. In Janab Umar Ismail Sahab, I also have very good regard to extend my good regard to Mr. Afzal Ibrahim Sahab,
who has invited me here as a chief guest. I have seen him working very hard for every cause among the society. For every good cause, he used to extend his hands every time. In Shantinagar, Richmond town, and all surrounding areas, he used to involve himself in all kind of good activities of the society, and particularly he used to extend his support very extensively to the cause of Ekta, Ekjati, communal harmony. It's very great that he used to take part in every one of that kind of effort. Now today, since he has taken up his responsibility, बहुत बड़ा सपना या ड्रीम देखा जो हमारी आंखों के सामने सच होता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सारे कर्नाटक में खड़ा किए. अब हमें मालूम पड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान में अल-अमीन इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं. इसके साथ ही जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो बहुत ही जरूरी है हमारे कौम के बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए भी, उसमें भी बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं. इसको सुनकर और मैं यहाँ एक चीफ गेस्ट के तौर पर आकर ये सब नज़ारा करके मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसे उनके फर्जंद जनाब उमर इस्माइल साहब ने आगे बढ़ाने का मुसम्मम इरादा करके. उनको देखा मैं अभी जो खड़के वो जो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो ये सब मेहनत किए बगैर भी जी सकते हैं. डॉक्टर साहब को मैंने एक बार सुना था कहते हुए कि एक मर्तबा उन्हें मालूम हुआ जब तमिलनाडु में वो मेडिकल कर रहे थे, उस वक्त मालूम उन्हें ख्याल हुआ कि अब मैं जितना भी कमाया मुझे लगता है अब बस है. ये डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं जो दुनिया में जितना भी कमाया पैसा अब मुझे बस है, मुझे अब कौम के काम करने हैं. वो अपने मुंह से ये बात बताए थे अपने तौर पर, मैंने खुद सुना था. मुझे लगता है कि वैसा ही ख्याल वो आगे बढ़ाते हुए उनके फर्जंद भी अपने आप को इसमें पूरी तरह से अमली तौर पर इन्वॉल्व कर रहे हैं. मुझे जहां तक मेरी सर्विस है, मुझे मालूम होता है इंसान जब अपने सोच और अपने ख्यालात के मुताबिक काम करता है तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी मुहैया करता है. अल्लाह की मदद जरूर आती है. सिर्फ ख्याल करने से अल्लाह की मदद नहीं आती, सिर्फ कोशिश करने से कामयाब होना मुश्किल है. अगर ख्याल किया, कोशिश किया और अल्लाह से मदद चाहिए तो जरूर अल्लाह मदद देगा. ये अल्लाह का हर इंसान को अल्लाह की तरफ से वादा है कि जो कोशिश इंसान करता है उसका रिजल्ट, नतीजा अल्लाह जरूर देता है. आज देखकर ये मालूम हुआ कि जो ये फील्ड में उतर कर काम कर रहे हैं, एक तरफ बैठकर चलाना नहीं सोच रहे थे. मैं मेरी नजर से देखा तो पता चलता है कि जिस तरह इन्होंने फील्ड के बीच में आके काम करने का मुसम्मम इरादा किया है, अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी और सारे इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ेंगे. आप जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टूर्नामेंट में, आप लोग भी पूरे इरादे से ये सोचकर करें कि आइंदा चलकर बड़े होकर हमारे पूरे बड़े अफेयर्स, हेल्म ऑफ द अफेयर्स आप निभाएंगे. इसी के साथ मैं इनको कोच करने वालों को, खुसूसन फिजिकल डायरेक्टर जनाब इलियास साहब और दीगर जितने फिजिकल डायरेक्टर्स हैं उन्हें, और शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जो आए हैं उन्हें. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the 6th state level Dr. Mumtaz Ahmad Khan football tournament. Today we have teams from Gulbarga, Bhatkal, Mysore, Chanpatna, Tumkur, Kolar and many teams from Bangalore. So I wish all of you all the best, play well and play in a good spirit. All of you all are here not only to play football but to also learn about the qualities of a good Muslim.
I'm also very happy to announce that today we have with us Mr. Syed Shafiullah Sahib as the chief guest for this function. Joint Secretary of Al-Amin Education Society. बताइए सर, अल-अमीन की इस कोशिश को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे यहाँ अल-अमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होस्कोटे में मुझे आज एक चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया गया। यहाँ तकरीबन 22 टीमें पूरे कर्नाटक स्टेट से फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। 2 दिन का टूर्नामेंट है अंडर 15 बच्चों के लिए। इसको इतना अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरह स्टेट लेवल या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस अंदाज से यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ आकर ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। इसमें जनाब उमर इस्माइल साहब, डॉक्टर मुमताज़ अली खान साहब के फर्जंद जनाब उमर इस्माइल साहब, जनाब फजल अफजल इब्राहिम साहब और डॉक्टर इलियास साहब और उनके दीगर रफ़ा सब मिलकर इतनी मेहनत लगा रहे हैं फील्ड में उतर के बच्चों को। एक तो स्पोर्ट्स में, दूसरा शाम में जब उनको यहाँ रहने का इंतजाम किया गया है और उलमा को बुलाकर उन्हें दीनी तालीम भी शाम के बाद देने का इंतजाम किया है। यानी 15 साल के बच्चों को अगर स्पोर्ट्स और दीनी तालीम एक साथ में एक जगह रोक कर दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम है। जहाँ सारी कौम अब फिक्रमंद है बच्चों को गलत रास्तों में चले जाने से बचाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। इस तरह अगर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए स्पोर्ट्स में और उसमें आगे बढ़ाया जाए तो आइंदा चलकर हमारे देश के, हमारे मुल्क के पूरे कामों में हिस्सा लेने और हुकूमत में भी हिस्सा लेने और दीगर सारे देश को संभालने और हमारी रियासत को संभालने के, आइंदा के बेहतरीन शहरी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तवज्जो न होने की वजह से नौजवान नस्ल जो है बेरारवी का शिकार है और इस वजह से अपनी सेहत भी खो रही है, अपनी खानदानी ताकत को भी कमजोर कर रही है। देखिए, जितने इदारे हैं, मुसलमान इदारे और कमेटियाँ और मसाजिद कमेटियाँ अगर कोशिश करके नौजवानों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में अगर मसरूफ रखें, या एजुकेशन में या काम में या स्पोर्ट्स में या दीगर दीनियात में, तो इंशाल्लाह दूसरी पूरी चीज़ों से बचाने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और इसके लिए बहुत ज़राए भी यहाँ हासिल हैं। कोशिश करनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़राए मिलेंगे और बच्चों को बचा सकते हैं। अगर सही उम्र में अगर बचा नहीं लिए गए बच्चों को तो आइंदा चलकर वो हमारे देश के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, कितनी टीमें हिस्सा ली हैं और क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6th स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के जॉइंट एफर्ट से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। तकरीबन 19 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें गुलबर्गा से, अटकल से, मैसूर से, चनपटना से, तुमकुर से, कोलार से टीम्स आएंगे और बैंगलोर से ज़्यादा टीम्स बैंगलोर से आएंगे। इसमें उलमा कराम का भी ज़्यादा ताउन है। बड़ी मेहनत से ये, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में बुरी आदतें, बुरे हैबिट्स, ड्रग्स वगैरह ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए उलमा की मेहनत है कि स्पोर्ट्स खिला के बच्चों को उनका एनर्जी जो है ये अच्छे काम में लगाएं और उनका टीवी और मोबाइल फ़ोन से उनका अटेंशन डाइवर्ट करके एक अच्छा माहौल बनाए। ये उलमा कराम मेहनत है और हमारे अल-अमीन की भी जिम्मेदारी है कि हमें बैंगलोर स्पोर्ट्स क्लब को तरक्की देना है और हमारे सोसाइटी की तरफ भी हमारा एक जिम्मेदारी है। तो ये मिलकर हम काम कर रहे हैं। बैंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब कब कायम हुआ था,
क्या मकसद था उस वक्त जब ये कायम हुआ? और ये बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब 1930s में कायम हुआ था। ये उस टाइम से मुस्लिम कम्युनिटी में स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, और खासकर हमारे शिवाजी नगर एरिया से जहाँ जहाँ ग्रुप कायम हुआ था, बहुत से मुसलमानों को ज़्यादातर डोमिनेट करते थे स्पोर्ट्स, और खासकर फुटबॉल में मुस्लिम बहुत आगे थे। और ये बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब बहुत अंग्रेजों के खिलाफ, उस टाइम पे जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ, उनके क्लब्स के खिलाफ जीत के अपने रोवर्स कप जीते हैं। तो ये पहले से मुस्लिम स्पोर्ट्स का बहुत, अब वो स्पोर्ट्स से थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी दूर हो गई है, इस रीजन अब फिर से स्पोर्ट्स को रिवाइव करना, स्पोर्ट्स का शौक डालना है, ये कोशिश से हम बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स रिवाइव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी तवज्जो दी और अपने तहत जो है मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब को लिया। बेंगलोर जो मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज अहमद खान, पहले से उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, रेसलिंग का बहुत शौक था, एथलेटिक्स का और फुटबॉल वगैरह। तो जैसा बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब हम लिए टेक ओवर किए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पोर्ट्स फुटबॉल को एनकरेज करें। अलमीन में हिस्ट्री है, 40 साल से बेंगलोर यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स चैंपियंस रहे हैं। हमारे मोहम्मद इलियास साहब के बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मुस्लिम का हमारा अलमीन का नाम जो है पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स के जरिए से रोशन किया गया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ये फुटबॉल क्लब जो हमें टेक ओवर किए हैं, और इस वक्त जो बच्चों का कॉपरेशन है, उलमा कॉपरेशन है, कम्युनिटी का सपोर्ट है, ये सब लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुसलसल 6 साल से काम हो रहा है, और इसका फॉलोअप क्या रहता है सर कि टूर्नामेंट होने के बाद क्या कुछ आप वो जो टीमों से रब्त में रहते हैं और उनके लिए डायरेक्शंस दिए जाते हैं? हमारा मकसद क्या है, बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब की टीम को पहले सी डिवीजन में खिलाना, बाद में बी डिवीजन में खिलाना, फिर ए डिवीजन लेके जाना, ये हमारी मकसद है। और अवेयरनेस, जनरल स्पोर्ट्स में हर बच्चे को एक स्पोर्ट्स का अवेयरनेस है, और उसमें से जो बेस्ट प्लेयर्स है उनके बेंगलोर मुस्लिम स्पोर्ट्स क्लब के टीम में लेके आगे बढ़ना, ये हमारा मकसद से ये काम हो रहा है। बहुत सालों से काम चल रहा है, अब एक डायरेक्शन मिला है, और जैसा ये टूर्नामेंट खत्म होता है हमको खामोश बैठने होता है। जैसा टूर्नामेंट खत्म होता है फिर एक ख्वाहिश पैदा होती है, बच्चों का डिमांड है, उलमा कराम का डिमांड है, फिर कि और एक टूर्नामेंट किया जाए। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला बहुत से दिन से चल रहा है, ये एक टूर्नामेंट है, फिर चंद दिन बाद इंशाल्लाह टूर्नामेंट किया है। हुकूमत से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं, खासतौर पर स्पोर्ट्स की जानिब उसे फरोग देने के लिए? कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के ग्राउंड है, तो हमें कोशिश की है कि लास्ट टाइम कि हमारा जिस टूर्नामेंट उस ग्राउंड में किया जाए, अंडर 19 टूर्नामेंट बेंगलोर स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर किया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका, और क्योंकि उनके रीजंस हैं, वो किसी को ऐसा आउटसाइडर्स को टूर्नामेंट करने के लिए वहाँ ग्राउंड नहीं देते। तो अंदर ये ग्राउंड है, इसमें चल रहा है, आगे जब जरूरत पड़ती है हम इंशाल्लाह उनसे भी, गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प लेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।